क्योंकि तो याद रखिएगा। ओके, सो लेट्स कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, और we have couple of topics but small. First topic we'll learn is again multiplicative identity. Multiplicative identity. No, why my hands are not moving. Okay, multiplicative identity. I told you identity मतलब you should always think about your identity card. Identity card मतलब अपना ही चेहरा वापस आना है ना? So suppose you have a rational number p by q. We will multiply it with something which is known as the multiplicative identity. इसको हम कहते हैं multiplicative identity. After this multiplication, remember it like this. Identity means like identity card. आप ही का चेहरा वापस आना है. Your same face should be visible once again. अब बोलो तो आप क्या से multiply करोगे? 1. तो फिर याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है. So multiplicative identity, or now don't get it confused with additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखो यहीं पे एडिटिव आइडेंटिटी को भी लिख के दिखाता हूं। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा होता था कि यू यूज्ड टू हैव अ p by q, ये मल्टीप्लिकेटिव है, ये एडिटिव है। ऐसा क्या से ऐड करोगे कि आप ही का रैशनल नंबर आएगा? ये 0 होता था। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चे कर लेते हैं, इसको कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहां भी कंफ्यूजन नहीं होना, इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, आइए पहले देखते हैं व्हाट वाज एडिटिव इनवर्स। इन एडिटिव इनवर्स वी यूज्ड टू एड इट विद अ नंबर सच दैट इट यूज्ड टू रिटर्न अ 0। It used to return a 0. याद है क्या हो गया निवेदिता? This is additive inverse. Additive inverse के साथ ऐड करने से हमें 0 मिलता था, तो कौन सा नंबर होता था? इसी का नेगेटिव है ना, इसी का नेगेटिव, so it will be a negative p upon q. But the issue is that in multiplicative inverse we do not look for, just see, this is a p upon q, we will multiply with the multiplicative inverse, but we will not look for 0. ऐसा क्यों? 0 लाना तो आसान है. For every number the multiplicative inverse would have been the same, that is 0 0 0. हर एक नंबर के लिए, अलग अलग नंबर के लिए we would not have separate multiplicative inverse. Are you getting it? यहाँ पे अगर मैं 0 लेता like this, then guessing the number here is 0. It would not have been different from every number. So in multiplicative inverse we are supposed to get a 1. We are supposed to get a 1. अब 1 करने के लिए क्या करेंगे? इसको उल्टा टांग देंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे. So this is the reciprocal. Multiplicative inverse is always the reciprocal, and multiplicative identity is fixed, which is 1. इतना कॉपी कर लीजिए. बाकी I think this is very easy for you to do any problems on multiplicative inverse and multiplicative identity. Is that clear? Anyone has any issue? Multiplicative identity means the number should be thrown back. That means the multiplicative identity will always be 1. And multiplicative inverse means you should get the product as 1, which means the number should always be the somersaulted, which is the reciprocal of that number. ठीक है? Done? आगे बढ़े? चलिए अब बढ़ते हैं how we do multiplication. Multiplication कैसे करते हैं? So our next topic is multiplication of rational numbers. Multiplication of rational number. अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है a upon b, क्या हो गया? a upon b, और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं विद अनदर रैशनल नंबर c upon d, then we multiply the numerators and we multiply the denominators. Obviously if there is some intercancellation which is possible, that we will do as the last step. मेरा फैन डिस्टर्ब कर रहा है क्या आपको? नहीं डिस्टर्ब कर रहा है तो आप थोड़ा वहां पे बैठ जाइए.
अच्छा गर्मी लग रही है, नहीं, many people have that fan or allergy, so I don't have any issue. So AC divided by BD. This is your multiplication of rational numbers. Clear? Parallelly here we will also discuss division of rational numbers. We'll also discuss division of rational numbers. So in division, what do? We have a number a upon b and we are trying to divide it by c upon d. Such an expression can also be written as a upon b being divided by c upon d, right? That's the same thing. So here in division, we will take a upon b and we will multiply it with the reciprocal. That is, इसको कर देंगे हम d upon c. हमारा आंसर हो गया AD by BC. This is division. Division is division of two rational number is, you know, which is the divisor? This is the divisor. And this is the dividend. ये तो पता है ना, dividend, divisor and quotient. Divisor को हम क्या करते हैं? We take the reciprocal of the divisor and then find the product with the dividend. अगर इतना हाई एंड लग रहा है तो सीधा इसको उल्टा दो, खत्म बात. डिवाइजर डिविडेंड पता है तो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, तब और क्लियर हो जाते हैं. सपोज हमें किसी ने बोला 5/3 को मल्टीप्लाई कीजिए -2/6 के साथ, तो हम क्या करेंगे? पहले 5/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बिकम -10 and 3 into 6 is how much? 18. Obviously I'm not bringing it to lowest terms, you can bring it to lowest terms also, or you could have cancelled like 2, 3, 6, ऐसे भी कर सकता है. Right now we are not concentrating on bringing it to lowest terms. Suppose somebody says a 3/4 being multiplied by a 2. So this is to be thought as 3/4 is being multiplied by 2/1. That means 3 into 2, 6, 4 into 1, 4. Clear? कुछ divisions देखते हैं. Suppose 7/21, okay, sorry, 7/22 is being multiplied by, say, 21 by, say, 11. Sorry, not multiplied. Divide by 21 by 11. So what did our procedure say? We take 7/22. Why? Because 7/22 is the dividend. This is the dividend and this is the divisor. So what do? We somersault or reciprocate the divisor. तो reciprocal ले लो इसका 11/21. अब आप इसमें शॉर्ट टर्म्स भी कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 11 2 times is 22. Similarly 7 3 times is 21. So I'm left with a 1/2 multiplied with a 1/3, which is a 1/6. Do you know the best way of writing rational numbers is whenever you write a rational number, आप कुछ हाइजीन की बात करते हैं. Rational number should be written A, P, Q, and the equal to should exactly come at the bar. This is the way of writing rational numbers. Clear? So we understood what all. अब तक क्या हो गया? Multiplicative identity, multiplicative inverse. ठीक है? Then what all did we learn? One clear so far? Then we learned about how to do multiplication, how you do division. Obviously here we did not stress upon bringing to lowest terms, but we also bring to lowest terms. Why? We bring to lowest terms to make our calculations look easier, or calculations become easier. चलिए आगे, shall we? चलिए. Our next job is properties of multiplication. वो सब फिर से आएगा, ठीक है? Properties. हाँ, सब कुछ आएगा. Properties of multiplication. अब तक हमने अमर और अकबर को देखा था, अभी एंथनी भी आ जाएगा इसमें, ठीक है? हमने सिर्फ क्या क्या देखा था? एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव. इस बार डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा, बड़ा इजी है. आ जाओ. सबसे पहला वाला है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मैंने बोला था ना आपको, डोसा चटनी इज इक्वल टू चटनी डोसा. निवेदिता एक बार और याद करिए, मैं मुंह में पेंसिल घुसा तो क्या हो गया? डोंट ड्रिंक वाटर. व्हाट हैज हैपेंड? सबसे खाली क्या क्या क्या
ने क्या कल लेट क्यों सोया था? मतलब कॉलोनी में वॉचमैन कम थे क्या? आपको टावर? हाँ, कितने बजे सो गए? 2 बजे? 1 बजे तक पढ़ रहे हो इस एज में? तो हिंदी का एग्जाम है तो क्या हो गया? हिंदी में कोई डायन निकलते हैं क्या? हिंदी पढ़ते नहीं हो, हिंदी बोलते नहीं हो, दैट्स व्हाई यू फाइंड हिंदी टफ. हाँ, the ones who do not speak in Hindi or do not converse, they only find Hindi tough. Otherwise हिंदी क्यों टफ होगी? मुझे तो दुख हुआ 10th के बाद when I went to 11th and I had to leave Hindi because in our days if you study science you can't have another language. I really felt bad कि हिंदी चली गई मेरे हाथ से. हाँ हाँ, feeling sleepy, take a pen between the 2 fingers and squeeze your fingers. Some sort of very nice feeling will come and the pain will go. और कान को दबा दो ना, यहाँ पे पिंच करो कान को, चला जाएगा. हाँ, क्यों नींद आ रहा है? जाओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Commutative property. Commutative property always means a simple thing. A into B is same as a B into A. This is commutative property. कहीं भी आप पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, commutative property of addition means A plus B is B plus A. Commutative property of what do you call multiplication is A into B is B into A. So in our case, we are doing rational numbers. So if I have a P by Q being multiplied by an R upon S, that is same as an R upon S being multiplied by a P upon Q. डेमो देना होगा 3 इडियट की तरह. डेमो दीजिए. ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे करते हैं. चलो एक एक्सप्लेन कर देते हैं इसको. सपोज हमारे पास किसी ने कहा 2 by 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 by 5 के साथ, ठीक है, एंड वी हैव टू शो these are the two rational numbers. We have to show what? We have to show the commutative property. So in commutative property we'll first do our LHS which is A by B. लास्ट में हमें कितना मिला? 14 by 15. आइए रहस्य भी कर लेते हैं. रहस्य में हम लेंगे 7 by 5 into 2 upon 3. हमें कितना मिलेगा? 14 by 15. Since रहस्य is equal to रहस्य, so ये प्रमाण किया जाता है that A by B commutative property is verified. A upon B is same as A multiplied by B is same as B multiplied by A. But this does not hold in division. Just ask yourself, 5 divided by 2 is not same as 2 divided by 5. 5 divided by 2 is a very lucky scenario. 5 dairy milk 2 बच्चों में बांटा जाएगा. Each बच्चा will get at least 2 dairy milk. But 2 dairy milk divided among 5 is a very bad scenario. You're not going to get even a 1 complete dairy milk. So divisions में commutative law apply नहीं होता है. Use your common sense. These things are very easy. Don't try to mug them up. ठीक है, आगे बढ़े. आइए. तो क्लास चुपचाप है आज. क्या हो गया अर्नव? आज क्लास चुप है. अर्नव फ्रोजन नीचे सर करके. अरे अभियान आप कुछ बोलते ही नहीं हो. यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट. मजा आएगा. ऐसा तो नहीं कि चुप्पी चुप्पी रहते हो. हाँ, कुछ तो कुछ बोलो. कैसा है पुणे में गर्मी? हाउ इज द हीट इन पुणे नाउ? इट इज हॉट. सो यू आर ईटिंग रसमलाई और नॉट? Yes. अरे दे हैव अ बिग स्वीट शॉप ऑल्सो इन पुणे, फेमस. नेक्स्ट टाइम पुणे जाने से अभियान के शॉप के सामने गाड़ी रोक लेने का. कौन? अरे पुणे एयरपोर्ट के तुम खाली एयरपोर्ट हो, तुम्हें इतना स्टेशन नहीं है, बस नहीं है, गाड़ी नहीं है, खाली पुणे एयरपोर्ट. मैं तो हर साल जाता हूँ बॉम्बे, तो पुणे के ऊपर से. नेक्स्ट टाइम रुकेंगे अभियान के यहाँ पे, एक एक कटोरा रसमलाई खाएंगे. लास्ट मंथ नेक्स्ट टाइम यू गो यू लाइज विथ हिम देयर इन बालेभट्टी. बढ़िया है. ऑल टाइप ऑफ स्वीट्स. हाँ, दोस्त है. दोस्त दिन किस दिन काम आएंगे. ठीक है ना. चले आगे बढ़ते हैं. हे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर हु गो टू पुणे. अभियान दुकान के सामने लिख देना, स्कैन द यूपीआई कोड एंड देन एंटर. All of them are thinking now Avian is our classmate. Scan the UPI code and then park your car. ठीक है ना. आगे associative property. Associative properties, डोसा सांबर चटनी is same as डोसा चटनी सांबर और सांबर चटनी डोसा. किस ऑर्डर में खाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब खा के आना. समझ में आया? या इसमें एक मजेदार बात है, वो बोलूंगा अभी.
A upon B multiplied by C upon D multiplied by E upon F है। आपको पहले बोला ये करो CD इंटू EF, लेकिन आप बोलते हो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो पहले AB को करूंगा, फिर CD को करूंगा और उसके बाद E अपॉन F को करूंगा। अर्णव ओके बेटा, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, अभी भी डिस्कनेक्टेड है। आई टॉक टू ममा वंस। मैं समझ गया हूँ, नहीं आपका प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया हूँ। आफ्टर टुडेज क्लास आई टॉक स्पीक वंस विद डैडी व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग टू यू, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, पहले ना फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे कोई मतलब नहीं। अब आप बोल रहे हो इसको मैंने पहले ब्रैकेट दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी स्वैप्ड एज लॉन्ग एज दे आर ऑल दिस। आप ऐसे लिख के ऐसे जाते तब भी ठीक रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सेइंग द प्रायोरिटी does not. So let's take one example out here. Suppose we were given you multiply 2 upon 3 into say 5 upon 7 into say another number say 11 upon 13, ऐसा कोई नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है ना। और हमें आपकी बात ले लेते हैं, हमें प्रायोरिटी ऐसे दिया है, देखो ऐसे प्रायोरिटी दिया है। नाउ आई एम टेकिंग योर वर्ड्स, यू कैन डू इट सेम एज कि सर मैं 2 upon 3 बाद में करूंगा, मैं पहले 5 upon 7 करूंगा इंटू 11 upon 13। अग्रीड, लेट्स चेक इट नाउ। चलिए हमारे LHS को देखते हैं। LHS is a 2 upon 3 multiplied by a 5 upon 7 then multiplied by a 11 upon 13. So we will honor what? We will honor बदमाश। हाँ बदमाश का B क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को मिलेगी पहली मान्यता, प्राथमिकता, और द प्रेफरेंस विल बी टू ब्रैकेट। तो आइए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने से 5 दूनी 10, 7 तिया 21 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है इसमें। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 13। क्लियर? आइए इसको आगे करते हैं। आई होप यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 10। जो नंबर है उसके साथ एक लड्डू एक्स्ट्रा बैठेगा। नंबर क्या है हमारा? 11, और बिकॉज 10 हैज गॉट 1 लड्डू, यू गिव दैट लड्डू। 21 एंड 13, सर आई डोंट नो द टेबल ऑफ 13। हाँ जी सर, 13 द टेबल याद है? 200। हाँ नहीं मैं तो इससे पूछ रहा हूँ जी। 200 जी, 13 द टेबल। 13 इंटू 8 कितना है सर? तो 13 इंटू 1 इज 13, 3 1 कैरी ओवर, 13 2 जा 26 26 plus 1 27। 273 मीन्स इन हिंदी इट इज 273 डिवाइडेड ऊपर कितना है? 110, 110। बिल्कुल जानोगे। क्लास 10 तक नहीं आता। मैं यहाँ आके जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग फिश आई लर्न काउंटिंग इन तेलुगु ऑल्सो, because the fish seller is Telugu, he's not Bengali. I want the fish, so I learned Telugu. Whenever these things come to your mind, right children, I'm taking a break now. Whenever these things come, I don't know how to count in Hindi and all. Think of a person named Vasco da Gama. You know Vasco da Gama? Yeah, the Portuguese man who came here, right? Did Vasco da Gama have a Google translator? Did he have Google with him? No. They came to India, they made a route for trade, they bought spices, took our things, brought their things, also spread a religion also. That means they have talked to people. If he can do it, why can't you do it? आपको सीखने का शौक है तो you have got a small app on mobile called Duolingo. I want to learn Russian. मुझे बहुत शौक है, मैं तो सीखता हूं धीरे धीरे। हेलो को वहां गुड मॉर्निंग को बोलते हैं प्रिवियात, थैंक यू को बोलते हैं स्पासिबा। मैं सीखता हूं इस एज में, अगर मैं सीख रहा हूं तो आप क्यों नहीं? ये इसलिए ये सब कहानी मत दो, आई डोंट नो हाउ टू काउंट। और अगर आप इस कंट्री में रह के, सो यू ऑल आर ऑल ऑलमोस्ट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन तेलंगाना, डू यू एग्री? हैदराबाद में ही बड़े हो रहे हो। अगर यहाँ 12 साल जिंदगी बिताने के बाद आपसे तेलुगु नहीं बोला जाता है ना, तो मेरे लिए एक सिंपल बात है, SKB। यू नो व्हाट इज SKB? शर्म की बात। SKB मीन्स शर्म की बात।
We are born brought up in Assam. I am born brought up in Assam. My mother tongue is Bengali. I can fluently speak Assamese. I can fluently write Assamese. I can watch an Assamese movie. ऐसा कुछ नहीं है. मैं उड़िया भी सीखा हूँ, बोल सकता हूँ. मैं तेलुगु मूवीज भी देख सकता हूँ. बिल्कुल आपके सारे उड़िया आप बोलते रहे, मैं आपको बिल्कुल समझते रहूंगा. आप मारवाड़ी समझ सकता हूँ, भोजपुरी सीखने की इच्छा है. लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, oh, these are Indian language, कौन सीखता है all these? हाँ, तो RHS में क्या दिख रहा है? 5/7 into 11/13. कौन सा पहले करेंगे इस बार? हाँ, तो ब्रैकेट को करिए. 5 गुना 11 कितना हो गया? 55. और 13 7 जा how much? 91 मतलब 91. 91. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए. अच्छा 55 into 2 कॉमन सेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. 55 अरे 110 छोड़ो. 55 हमें नहीं आता है. 50 आता है कि नहीं? 50 को डबल करे तो कितना होता है? 100. कितना आपने छोड़ दिया था? 5 छोड़ दिया था. ऐसे 2 5 छोड़े, क्योंकि 55 into 2 था ना, तो आपने इसको क्या किया? 50 into 2 100. 2 5 छूट गए. 2 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 10. 100 के साथ 10 जोड़ेंगे तो 110. वेरी गुड सर. 3 एकम 3 3 9 27. कहां मिला? लहस्वा इक्वल टू रहस्वा. वेरीफाइड. समझ में आया? To learn languages, every language will help you someday. Today in Hyderabad, I never faced parking issues in front of any shops. Do you know why this reason? Majority of the security personnel in Hyderabad are from Assam. So the first thing when I park my car, every time the security will always say, "Saab, idhar parking mat karo, idhar nahi." ऐसा करते रहता है ना. I just read his name on the chest, and by his name I decode he's from Assam. Immediately खिड़की उतार के मैं उसको असमीज में बोल देता हूँ, और उसके अंदर क्या फीलिंग आ जाता है? आइए पार्किंग के सर, चिंता ही मत करो, जिधर इच्छा गाड़ी रोको. Similarly, you think there is a Telugu watchman in Assam, and there somebody puts down his window and speaks to him in Telugu. You have struck his emotional chord. वो बोलेगा, सर एकड़ा पार्क चेसी, सर एकड़ा टेंशन ले दो सर. बढ़िया मुखाउची. हाँ ठीक है. अच्छा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानने के लिए थोड़ा सा कबड्डी जानना जरूरी होता है. आप कबड्डी खेलना जानते हैं? One player goes into the arena of the other team. It is like raiding that team, and raid करके पकड़ता है. ऐसे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. This we will see in algebra also. So just see. Distributive property of multiplication, इसका नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है, of multiplication over addition. हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों होना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा सा एडिशन. आइए देखते हैं इसको. मान लो एक नंबर है a. देखो a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ओवर द सम ऑफ b and c. पहले सुनिए कैसा है. a is being multiplied over b and c. समझ में आया? Now b and c is the arena and a is coming to play कबड्डी. अब ये अंदर घुस गया है कबड्डी 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 करके. ठीक है, अब ये रेड करेगा. कैसे रेड करेगा? ये सबसे पहले रेड करेगा, इसको रेड करेगा. हाँ रेड करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा. तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? ये हो गया हमारा a इंटू बी मीन्स ए बी. ए बी के बाद जो निशान है, निशान वैसे ही बैठ जाएगा. इसके बाद ए रेड करेगा सी को. सर वो ए के बाद एक ही बात है, ब्रैकेट के सामने मल्टीप्लिकेशन होना. दिस थिंग इज सेम एज ए इंटू सेम थिंग. अंडरस्टूड? बट यू शुड रिमेंबर द क्राइटेरिया. पहले इसको लिपटिए, जो निशान है वो बैठाइए,
फिर इसको निपटिए, ओम स्वाहा। हो गया। अब करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहता है। कैसा रहेगा? ये कुछ ऐसा रहेगा, मान लीजिए हमारे पास है 2/3 को हमने कहा 5/7 प्लस से 3/11, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट डज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से? दैट दिस शुड बी सेम एज, पहले रेट करो, किसको रेट करेगा सर? 5/7 को रेट करेगा। उसके बाद बीच में क्या है सर? बीच में व्हाइट प्लस है। और उसके बाद 2/3 किसको रेट करेगा? 3/11 को रेट करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये सत्य है कि नहीं, इसके लिए हमें जांचना पड़ेगा, है ना। अति उत्तम। ऐसे बोलते बोलते आप एकदम स्पष्ट हिंदी बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश अवश्य। सी ही इज सेइंग दैट हिंदी इंग्लिश तो आप सबको आता है। इंग्लिश आई लर्न फ्रॉम यू, माई इंग्लिश इज वेरी बैड। एकदम उचित कथन है ना शिष्यों और शिष्या, एकदम क्षमा प्रार्थी, उचित कथन है। आइए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी विल सॉल्व एज पर द ऑर्डर गिवन। ऑर्डर क्या कहता है? बदमाशों को पहले सेट कीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, अर्थात 2/3 वहीं रहेगा। 7 और 11 are they co-prime numbers? They are co-prime numbers. They do not have anything in common. So the LSM will be the product. Yes, very good. Which will be 77, 77. और फिर क्या होता है? This one gets multiplied with this denominator, which means 5 into 11 is how much? 55. And 3 into 7 is how much? 21. 21. आगे बढ़ते हैं। 2/3 को वैसे ही रख लेते हैं। योग कीजिए 15 प्लस 21 का, कितना हो गया? 6। 76 डिवाइडेड बाई 77। ठीक है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, जाएगा नहीं दोनों। आगे बढ़े। 76 को डबल करना है। नाउ सी, विल गो बाय टेक्निक। वी हैव टू डबल 76। 70 is how much? 140. And 6 and 6 is how much? 12. 140 and 12, 150, 152. बस अब 3 टाइम्स है। 17 to 3 is 3 7 21, 210. 210 plus 3 more 7s, which is another 21. 210 plus 20 is 230 plus 1, 231. बस आइए दाहिने हाथ को संभाला जाए। हाँ, रहस्य में हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 7 तिया 21। इसके साथ कितना होगा? 3 2 6 33। 33 एंड 21, इसका लेकिन एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 का गड़बड़ है। 21 एंड 33 कितना? 3 7 21, 3 11 33। और जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि एलसीएम ऐसा है तो हम इसी हम एल पैटर्न में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 into 7 77, 77 into 3 70, 70, 70 to 10, another 20 to 20, 231। तो इसका एलसीएम हुआ 231। अब देखो 231 डिवाइडेड बाय 21। लुक ऑन द बोर्ड। 231 डिवाइडेड बाय 21, यहां से 21 छुपा दीजिए, ये 21 है। 3 into 7 is 21, कितना बचा? 11। So that number 10 will get multiplied by 11. Did you understand this technique? See, 231 you will divide by 21. You will again do खिचपिच, जरूरत नहीं है। यहां पे 21 हंट करो, ये 7 into 3 21 है, इसको छुपा दो। कितना दिख रहा है? 11 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? 10 को। कितना मिलेगा? 110। अब हमें 33 छुपाना पड़ेगा। 33 छुपाओ, ये 33 छुपा दिया, कितना दिख रहा है? 7 से मल्टीप्लाई करो 6 को, 42। ये हो गया 152 ओवर 231। वाओ। Lahas equal to Rahas, hence the distributive property of multiplication over addition has been identified. नहीं, जरूरत नहीं, आप मतलब मैंने बोला hence verified, this is verified। अब भाई साहब समझ में आया?
किस तरह से किया वो समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन इजीली कैसे कर सकते हैं? हाइड वाला नहीं समझ में आया? अच्छा, यहां पे हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम मिल गया, नो इश्यूज, ये स्टेप को दोबारा करते हैं, ठीक है? हमें करना था 10/21, अब हम बेबी स्टेप्स में करेंगे इसको। 6/33, when you were in grade 7 you used to write LCM of 21 and 33, कितना आया था बेटा? 231, right? Then you used to do a baby step. What was the baby step? You will take 10/21 and you will multiply it by something to get a 231. Do you agree or not? यही करते थे। ये नंबर कहां से आएगा बेटा? ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस प्रोडक्ट वैल्यू इज 231. डू यू एग्री और नॉट? 3 into 7 into 11 is 231. दैट इज द एलसीएम। यहां से 21 गायब करो, 21 गायब करो मतलब 3 और 7 को गायब कर दो, कितना बच गया? समझ में आया? हाँ, पढ़ते नहीं थे ना क्लास 7 में, खाली दुनिया भर का वीडियो गेम खेलोगे तो यही होगा। आ जाओ अभी इसको भी 231 बनाना है। अब इसको 231 हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको 231 बनाना है। यहां से 33 ढक दो, ये और ये ढक गया 33। अब क्या दिख रहा है? बस 7 6 42। भाई साहब इसी चीज को तो मैंने यहां पे किया था, पर तन्ने समझना आई। अब आप बड़े हो रहे हैं, इतना रायता फैला के थोड़ी प्रॉब्लम होगा। दिस इज नॉट व्हाट इज बीन आस्क्ड टू यू, यू हैव टू सॉल्व दिस। Sir, I could not make the biryani on time because I was peeling the onions so softly, you know, they get hurt, they were crying, my heart cried, so I was saying onion onion, don't mind। तब तक बिरयानी नहीं हुआ, पब्लिक जूते मार के गए हमारी दुकान में, वही हुआ। चलें आगे, बस ज्ञान पाठ हो गया। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम करते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स। आ गया, चलिए अब फिर से वो वाले प्रॉब्लम आएंगे। व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सॉरी व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है ना? तो हम स्टोरी को वैसे ही तोड़ लेंगे। चले आगे बढ़े, ऑलरेडी, चलो लेट्स गेट ऑन। एक टाइप का प्रॉब्लम तो ऐसा है, कैसा? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स okay of two rational numbers is 16/9. Okay, if one of the numbers is -4/3, find the other. ओके, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको आता है तब भी अच्छा, आपको नहीं आता है तो बहुत ही अच्छा। In this season, you know, now there's some dirty thing that I'm going to say. If you actually cook food, add some less salt because some salt is added by the sweat that falls from your head over the food. है ना? कुछ खाना तो पसीने से ही नमकीन हो जाता है। हाँ, गोलगप्पा का टेस्ट तो पसीने से ही आता है ना। हाँ, गोलगप्पा कैन नेवर बी सर्व विद ग्लव्स एंड ऑल दिस थिंग। गोलगप्पा सर्विंग के लिए इट शुड ऑलवेज बी इन अ बस स्टैंड, डस्ट अराउंड, यस, पर्सन शुड बी लिटिल बिट स्वेटी, देन वो बोलेगा हाँ भाई मैडम बोलिए कितना प्लेट लगाएं, ऐसे करके। और फिर एक कपड़ा रहेगा जिसमें सब कुछ पोंछते रहता है, हाथ भी पोंछेगा, टेबल भी पोंछेगा, और फिर प्रतीत जैसा 2 दिन हॉस्पिटल में बिता के आएगा, है ना? ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। आइए इस प्रॉब्लम को करने से पहले सबसे पहले हम हमारे मस्तिष्क को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें बोल क्या रहा है। ये प्रॉब्लम हमें कहता है कि 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना? एक रैशनल नंबर R1
और एक रैशनल नंबर R2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 16/9। समझ लीजिए पहले, इसमें एक रैशनल नंबर है -4/3, दूसरा अज्ञात है, नहीं पता हमें, इसी नंबर को हमें निकालना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? नाउ द बेस्ट इज दैट इफ यू go by x, let's say we assume this number to be, ये तो पता नहीं, इसको x करेंगे, और x कैसे करेंगे? assume करेंगे। तो assume मतलब this is your brought in character, you have to at last release it also। तो आइए इस स्टोरी को अब हम लिखने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट्स के टर्म पे, और इंग्लिश आपकी मेरे से काफी अच्छी है, तो देखते हैं कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, लेट the other number To be multiplied. be x। ठीक है, चलो हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? तो हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है मेरा। ठीक है, let the other number be x। now we write as per question, और ATQ लिखने से कोई मैम काट देगा, तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा as per question। क्वेश्चन में आपने क्या दिया, गिवन भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं -4/3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलता है? 16/9। नाउ बी केयरफुल, दिस इज अ इक्वेशन। नाउ आई विल चेक यू, जो एक बार सिखाया था दो बार नहीं सिखाऊंगा। दिस इज इक्वेशन, द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विथ और। हाँ, और अभी थोड़ा देख लो स्वयं, आप एक बार देखिए यहाँ पे। हाँ, और स्वयं आपको क्या निकालना है? x निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x रखा, और इस साइड क्या है बेटा? 16/9 है। ठीक है, अब यहां पे किस्मत आपके साथ पलटबाजी करेगा। जो जमीन के नीचे था पाताल में, वो ऊपर उठ के आ जाएगा, जो ऊपर था वो जमीन के नीचे दफन हो जाएगा। किसके साथ? अपने साइन के साथ। जो लाए हो उसके साथ जाओगे, जो लाए हो उसके साथ ऊपर जाओ। ले जाए इन्हें। आइए 16 के साथ ले चलते हैं 3 को, और नीचे। अरे यार, ये एकदम रॉकेट प्रोसेसर है ये। अच्छा, फिर इन्हें क्या लिखेंगे? 3 से 9 को काटेंगे तो 3 हुआ, है ना? और 4 से 16 को काटेंगे तो कितना होगा? 4 हुआ। लेकिन यहाँ पे एक 4 से -4 करेंगे तो +16 हो जाता है, एक ही बात है। तो थोड़ा गंदा दिख रहा है, अगले स्टेप में लिख देते हैं -4/3, और फिर लिखिए therefore मतलब प्लग पॉइंट, the other number, रोहन डार्लिंग क्लियर इज, थोड़ा जोर से यस बोलिए ना, मैं इतना जोर से क्लियर बोलता हूं, आप ऐसे यस, कोई छुपा ले जाएगा क्या? डोंट मेक नॉइज, बुढ़ा बाबा घूम रहा है, झोली में पकड़ के ले जाएगा, है ना? इज -4/3। हम ऐसे बोलते थे जूजू है वहां पे मत जाओ, नहीं जाते थे, जूजू के डर से बैठे थे। जूजू क्या है आज तक पता नहीं चला, बस जूजू है। हाँ, लिजर्ड वर्ड पता नहीं। जूजू इज ए काल्पनिक कैरेक्टर वीव्ड बाय माय मदर व्हिच ब्रिंग्स फ्राइट इन माय आईज सो दैट व्हेन द नेम इज प्रोनाउंस्ड आई गेट इनटू डिसिप्लिन्ड मोड। हाँ, तो ऐसा ही है, जूजू है, बुढ़ा है। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? व्हाट नंबर, चलिए थोड़ा और नंबर करते, और प्रॉब्लम करते हैं, बढ़ते आगे, चलाए। चलिए अगला प्रॉब्लम, व्हाट डिड यू से? व्हिच टेस्ट? अच्छा, बाय व्हाट नंबर, by what number should -33/8 be divided? ओ जी, डिवाइडेड दिया गल्ला हो रहा है जी, डिवाइडेड दिया गल्ला, be divided to get कितना? -11/2। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2? आंसर सर? अरे फर्स्ट शीट रखा करो। कौन सा?
मतलब अगला वर्कशीट है वो भी submit कर- मृत्यु कैसी होगी वो मेरी कल्पना है, अभी आप उसके बारे में मत सोचिए, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, टू गेट दिस। हाँ, सो वी विल नाउ ब्रिंग दिस, ऐसे प्रॉब्लम आने से हल्का करेंगे, क्या मोड में जाएंगे, वी विल गो इनटू हल्का मोड। हल्का मोड क्या कहता है, इजी कर लो, बाय व्हाट नंबर शुड 8 बी डिवाइडेड टू गेट 2, ऐसा एक प्रॉब्लम सोच लो, बाय व्हाट नंबर शुड 8 बी डिवाइडेड टू गेट 2, you tell me. No, not that procedure. What was the procedure you did in your mind? 8 divided by 2 you did in your mind. The answer is 4, I also know, but the answer is not important, procedure is important. What is the procedure? 8 divided by 2. So we can solve this problem by two ways, okay? Again, by x way, x वाले वे से कर सकते हैं, बिना x वाले वे में। पहले हम ऐसे दिखा देते हैं। So इसमें क्या होता है, you have to have a mind, and in your mind that number is equal to what, 8 divided by 2, correct? तो हम यहां पे लिखेंगे the required number is, आपके मन का 8 क्वेश्चन का कितना है, 1 minute, look at the board यार, this is getting recorded anyway। आपके मन का 8 क्वेश्चन का कितना है, -33 by 8, and you are dividing it with what, 2, and what is the 2 here, -11 by 2. Did you understand this technique what I tried to teach? Rohan, did you understand this? If you find these numbers are clumsy, put something which is easy for you to solve, and then in your mind you do the calculation and then set up the calculation, but don't write 8 divided by 2. 8 divided by 2 was your assumption. You write what is 8 in your problem and what is 2 in your problem, and then just solve this. So we'll do this. So this is negative 33 upon 8 into 2 upon negative 11. Got it? Everything can be simplified. Negative ने negative को काट लिया, 11 ने 33 को काटा 3 से, 2 ने 8 को काटा 4 से, आय हाय, आंसर कितना आया, 3 upon 4। एक बार और हाँ, जबरदस्त। अर्णव कैसे आंसर देता है, ग्रोसरी स्टोर की तरह, आटा 2 किलो, हाँ, मैदा 300 ग्राम, हाँ, ठीक है, हो गया, ये एक तरीका हो गया। लेकिन अगर आपको शौक है, क्या चीज है, शौक, शौक, क्या चीज का शौक है, कि सर मेरे को एक्स बहुत अच्छा लगता है, कौन है, क्लास के टाइम पे फोन बहुत ही डेंजरस चीज है, ठीक है। अगर हमें शौक है कि हम एक्स पैटर्न में करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, समझ में आया। फिर हम क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन कहता है this number, by what number should this be divided, as per question, negative 33 upon 8 divided by x should give me what, should give me -11 by 2। So this is the second one. This is how I make ठीक है, लेकिन यहां पे होगा भी मजेदार चीज देखो, यहां पे हम लिखेंगे और -33 upon 8 divided by x by 1 is equal to -11 by 2। ठीक है, एकदम बेबी स्टेप्स में करेंगे, ताकि कुछ चिल्ड्रन मेक अ मिस्टेक इन मैथमेटिक्स व्हेन दे जंप मत करो, अपने आप को हमेशा गधा समझो, गधे का कभी मौत नहीं होता है, घोड़े का ही मौत होता है। 1 upon x is equal to -11 by 2। समझ में आया, इतना हो गया। अब आप क्या करो, ये 1/x को रिटेन कर दो, इस साइड में इसको रिटेन करो, तो क्या हो गया, -11 by 2 इंटू जो नीचे था वो उधर जाने से ऊपर उठ जाएगा,
8 by -33। समझी? अब हमारा आ गया काटा काटी का मौसम। नेगेटिव ने नेगेटिव को काटा, 2 ने 8 को काटा 4 से, 11 ने 33 को काटा 3 से। भाई साहब समझ में आया? तो हमारा अगला स्टेप होगा, our next step would be और 1/x is equal to what? 4/3। रुकिए ना, 3/4 होगा ना, ये क्या है? ये x थोड़ी है, ये 1/x है। सो इफ 1/x को आप समरसॉल्ट करेंगे तो इसको भी तो समरसॉल्ट करना पड़ेगा, तभी ना इक्वालिटी प्रिजर्व होगा। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? x/1 is equal to 3/4 और x/1 is nothing but x which is 3/4. The required number is 3/4. अगर आप मेरी बात सुने ना और अगर आप करना चाहें, this process takes less number of steps according to me, especially in division, not in multiplication. This process takes much less number of steps, but again choice is yours. If you are doing by x, do not goof it up out here. x से करो लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट करो। क्लियर? मजो आयो? आइए एक और प्रॉब्लम किया जाए इसी तरह का। ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम दिया था तो बच्चों को डोलो देना पड़ा था। डोलो जानते हो ना? डोलो 650। रेडी है आप लोग? इस प्रॉब्लम के बाद सीधा मेट प्लस। गजब प्रॉब्लम का नाम है मौत। डिवाइड द सम ऑफ, अब रुक जा 2 मिनट पहले कर। हाली मे आई गो टू वॉशरूम। इतना क्या तेरा किडनी में फिल्टर होते रहता है? ऐसे ही मतलब मे आई गो टू वॉशरूम। एकदम ये पूरा दर्दनाक प्रॉब्लम है ये। ठीक है? इंग्लिश है और कुछ नहीं। डिवाइड द सम ऑफ ब्ला ब्ला बाय द प्रोडक्ट ऑफ ब्ला ब्ला। इफ यू थिंक यू नो इंग्लिश देन देयर इज नथिंग टू बी डन। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं आपका मस्तिष्क, ग्रे मैटर। वी हैव टू नाउ प्रोसेस। ये क्या बोलते हैं स्टेप को? प्रोसेस द क्वेश्चन। जो आप करते नहीं हो, यू स्ट्रेट अवे स्टार्ट अप्लाइंग फॉर्मूला। इट सेज विल गो बाय इंग्लिश। डिवाइड, भाग कीजिए। व्हाट? द सम ऑफ। तो तो हम क्या करेंगे? इसका सम बनाना पड़ेगा हमें। हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी, जस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसका सम, दिस इज द सम। डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट। डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट। बस यही काम तो हमें करने बोल रहा है। How many of you understood this? Uzair, there is something below your eye. No, left eye. हाँ, divide the sum by the product. समझ में आया? ये था आपका प्रोसेसिंग। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोसेसिंग करेक्ट है, if you think your processing is correct, then let us progress with our problem. So our problem will be now, we just write solution. So the solution is 13/5. वेरी गुड सर। ठीक है? डिवाइडेड बाय -31/7 इंटू 1/-2। ठीक है? आइए इसका सम करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट्स। 7 and 5, do they have anything in common? No. So the LCM would be straight away 35. And once 35, 13 gets multiplied by 7. 13 7s are 91. We just did. And 12, -12 है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे भी ब्रैकेट डालिए तो ये हो जाएगा 1 minute। हाँ, अरे okay, 1 minute। हाँ, this did not get activated। Yeah, so this would be 35 would be my LCM, and I have 1391
and here it will be negative 60. क्लियर? उसी तरह उसको भी प्रोसेस कर लेते हैं. आइए, इसमें कितना हो जाएगा? Negatives and negatives will get cut, so it will become 31 by 14. क्लियर? अगले स्टेप, 91 से 60 निकालना है. 90 60 is how much? 90 60 is 30. 91 से करेंगे तो 31 by 35 divided by 31 by 14. करेक्ट हो? आगे चलेंगे, 31 by 35 को वैसे ही रखेंगे और इसको धोबी पछाड़ देंगे. भाई धोबी पछाड़, इट बिकम्स 30. अब 31 की 31 से हो गई मौत और 7 5 35, 7 2 जा 14. आंसर आया 2/5. समझ में आया? बहुत अच्छा. हाँ, इजी है. मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम इज इन द इंग्लिश पार्ट. मैं तो हमेशा कहता हूं, यू गाइज आर वीक इन वन सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. You love to speak in English, but when English is to be deciphered, 1 minute. At that time, ये किसका बैग है? अरे ये उठा देना जरा बिट्टू. When English, slowly. When English is to be deciphered, an issue. Okay, nothing broke. नीचे रख दो बेटा, गिर जाएगा वो फिर से. हाँ. Can you just copy this problem? I'm hydrating some dihydrogen oxide in my throat. H2O is dihydrogen oxide, which is water. Till that time, kindly bear with me. Hydrogen oxide is not water, that is HO. Dihydrogen oxide is water. Please. मजा आता है? हो गया? चलिए एक और प्रॉब्लम करेंगे अभी. आज मैथ्स ही है, आपके बाद भी मैथ्स है. आपके बाद है ग्रेड 9. क्या है? 10:30 is their time. चले. ओके, एकदम गजब प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के बाद काफी बच्चे हॉस्पिटल चले गए थे. डिवाइड द सम ऑफ 65/12. चुप. 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस. डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस. इन दोनों संख्याओं के सम को उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कीजिए. अर्थात ये हूं मैं और ये मेरा मस्तिष्क. प्रॉब्लम कह रहा है कि 65/12 और 8/3 के सम को डिवाइड करना है उसी के डिफरेंस से. ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे. दिस इज व्हाट योर हेड शुड बी प्रोसेसिंग द प्रॉब्लम एज, है ना? डिवाइड सम बाय देयर डिफरेंस. और अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो आइए इसे छोटा कर देते हैं. ठीक है, और सॉल्यूशन वहां निकालने की कोशिश करते हैं. सॉल्यूशन है 65/12 योग 8/3 डिवाइडेड बाय 65/12 योग 8/3. ऑलराइट, 12 and 3, do we have anything? Oh, 12 and 3 is a direct multiple, so the bigger one becomes the LCM. 65 gets retained and 8 4s are 32. Very good son. आजकल अर्नव आंसर देते ही मैं डिस्को देता हूं. अच्छा, यहां पे कितना हो जाएगा? यहां भी 12 हो जाएगा. ठीक है, ये 65 रहेगा और ये हो जाएगा 32.
65 और 32 को योग करेंगे तो कितना हो गया 7, ये हो गया 9/12 डिवाइडेड बाय 3/12। खेल के अगले पड़ाव में अगला सवाल 20,000 रुपए के लिए आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, है ना। 33, 12 ने 12 को काट लिया। 9 + 7, क्या 97 एक प्राइम नंबर है? Yes. तो क्यों? 97 में 7 और 9 को जोड़ो, कैसे डिविजिबल होगा? 9 + 7 is 16, 16 is not divisible, 97 is a prime number। हाँ करो। 91 प्राइम नंबर है? नहीं है। 90s के दौर पे 93 एक प्राइम नंबर है और 97 एक प्राइम नंबर है। हाँ 90 93 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 339, 97 प्राइम नंबर है। तो क्या ये प्रॉब्लम और आगे जाएगा? स्टॉप लग गया इसके ऊपर। कितना अर्नव, यही आंसर आया कि नहीं, या कुछ और आया, या हमने गलत किया? चेक करो। 5 + 2 7, 6 + 3 9, इधर हो गया 5 - 2 3, 6 - 3 3, 97, 12/33। और तो नहीं जाएगा, यही है। हाँ अर्नव, डिड इट टैली बिटू? अरे अर्नव, टैली किया कि नहीं? Arnav, you are muted, can't hear you. Did it tally? 231/33 fraction. ठीक है, तब भी चलता है, हमें नंबर ही चाहिए। तो आप नहीं, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं। So have you understood now what type of questions you might get in your worksheet? In your worksheet एक बिल बना ले अभी आपका। आइए आज खाना खाने, ओके वेटर हमारा बिल ले आइए। सो वेटर आपका बिल बनाएगा, ये है आपका बिल। हाँ इसके लिए आपको देना पड़ेगा अपना दिल, और दिल से बनेगा बिल। सबसे पहले आ जाएगा क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक प्लेट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक प्लेट। अभी तो मैंने वर्कशीट दिया ही नहीं, 3। उसके बाद क्या देना पड़ेगा? इसके बाद हमने क्या सिखाया था आपको? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, एक प्लेट, फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन हमने किया और कुछ डिवीजन हमने किया। एक प्लेट, फिर हमने किया वर्ड प्रॉब्लम, उसमें हमने किया एक प्लेट। तो ये आपका बिल आज का, इसके ज्यादा आपने कुछ नहीं सीखा। और इसी इसमें 3 2 बार लिखा क्या? ठीक है, इसके ऊपर आएगा आपको एक मिसाइल गिरेगा आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। हाँ, एंड दिस एंड्स आवर चैप्टर ऑन रेटियोनल नंबर्स। इससे रैशनल नंबर्स अध्याय संपूर्ण हुआ, क्लोज्ड। अगला अध्याय रहेगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर नंबर्स, जो भी है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर्स पढ़ेंगे क्योंकि आपके न्यू बुक में अ स्क्वायर अ क्यूब है शायद चैप्टर का नाम। तो हम पहले स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, फिर क्यूब में जाएंगे, फिर क्यूब रूट में जाएंगे। वर्ग और वर्गमूल अगले चैप्टर का नाम, अगला शीर्षक टॉपिक। स्क्वायर मींस वर्ग, राइट। एंड इफ वर्कशीट इज गिवन, उस वर्कशीट को आप A4 पेज में कीजिए, क्योंकि A4 पेज आपको स्कैन करना इजी रहता है, या फिर आप अपने कॉपी में भी कर रहे हैं। अर्नव, आप इस बार स्टेप वाइज करेंगे, सीधे नहीं करेंगे। हर बच्चा अपने पिछले वर्कशीट को देखेगा। द वर्कशीट, द होमवर्क इज नॉट अबाउट ओनली सॉल्विंग दिस, द होमवर्क इज ऑल्सो टू प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ एनिमल. An animal repeats his mistake, a human being doesn't. Typically mistakes that you have to take care of are no doing in straight line, no writing or an equal to का डिफरेंस आप जानेंगे, मार्जिन आप खींचेंगे,
colored pens की इतनी जरूरत नहीं है. There should be a margin. You need not put a bar after every problem. Work should be neat for those who did not do neat work. Then only you are improving. Otherwise, you are the same. Dhachu dhachu. You know what is dhachu dhachu? Donkey. Yes, he knows it. He is well versed.